So hello guys, welcome to the course and ये course basically more focused on life, relationship, time and money, right? और इसमें एक वैदिक knowledge touch भी रहेगा because these concepts have been picked up from Vedic sources also, right? तो अगर आपकी लाइफ में unhappiness है, if you're struggling with lot of emotions and if you have very feel like an uncertain life, this course is for you, right? I will also tell you reasons that why you are feeling something like this and also will help you in understanding how to basically improve the happiness quotient that you have. It is a very shocking fact, but India is much ahead with Pakistan when it comes to economic development. However, happiness quotient में इंडिया पाकिस्तान से पीछे है, right? So this course is basically will tell you that how to solve the equation of life. अपनी ज़िंदगी की इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, ज़िंदगी को सॉल्व कैसे करें, हाउ टू एक्चुअली सॉल्व लाइफ, राइट? हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, राइट? मनी, सीक्रेट वैदिक मेथड हमारी गीता में, हमारे शास्त्रों में, एंड वट एवर द विजडम आई हैव लर्नड as and pinpointed that what has been given in our Vedic text to how to start earning money, right? Time lessons, right? Why when you say that यार कुछ भी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, we don't have time to do this and that, तो वो भी समझना पड़ेगा कि how you are actually managing your time and how to actually do it, right? How to actually manage the time that you have and also how to buy time with money. This will also be taught. Why time is money will also be taught, and I'll give you specific examples and techniques and templates to solve this, right? Dealing with bullies, gaslighters and narcissists. We all know we come up with different people, we meet different people in our lives. How to manage those manipulators, those people who bully us, people who misbehave with us. How to understand that are these people, how to save yourself from all this. So this is a very dark topic which I will touch. This will come in later of the course, but we'll start with solving the equation of life, right? So let's start. We are always happy by default setting. हमको पता है, हम जब बचपन में पैदा होते हैं, we all are happy. Every soul in this world born is always happy. How you can see a child very happy, and that is why child is very attractive. People get attracted towards small kids. Why people get attracted to kids? The reason is because of the happiness quotient that they have. They are filled with energy, they are filled with happiness, right? And with time, happiness is like a balance. It depletes and should know that how to recharge, and we should definitely know how to recharge. और happiness धीरे धीरे डिप्लीट होती है. You can imagine happiness like a glass of water, जिसमें पानी भरा है, और वो ग्लास है वो आपकी लाइफ है, और जो पानी है वो आपकी हैप्पीनेस है. अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपकी मनी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस को चुरा चुरा के ले जाती है. एंड दैट इज़ द बेसिक ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज कोई भी एक सॉल्व करने से सारी चीज़ें डेवलप नहीं होंगी. वी हैव टू सी द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ. तो तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही है, राइट? सो वो भी समझेंगे हाउ टू एक्चुअली रिचार्ज इट. हम अपनी हैप्पीनेस को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, दैट विल कम इन लेटर ऑफ द कोर्स, राइट? सो आई जस्ट बिगिन विद द इक्वेशन ऑफ लाइफ, हाउ टू सॉल्व इट. तो समझो, एक बेसिक इक्वेशन उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट, x + 5 = 10. हमको x निकालना है. हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन? बाय यूजिंग कांस्टेंट. 5 इज़ अ कांस्टेंट, 10 इज़ अ कांस्टेंट. तो हम कांस्टेंट को यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स विच कैन कम टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग समवेयर, right, and you certainly have reserved a hotel for yourself, but then it turned out to be कि आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है at the last end. फिर आप क्या करोगे? And these are the things which definitely happen. These small things. Suddenly आपको नोट आता है कि आपको नोटिस पीरियड दे दिया जाता है. You have to, you are fired from the job. You lose your job. How will you deal with this, right? तो ये सारे वेरिएबल्स हैं.
What are constants? Constants are basically things which do not change in your life even if something happens. फॉर एग्जाम्पल आप अगर संडे को आपका कोई रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप एट अ टाइम इन द डे, दीज आर कॉन्स्टेंट. सो हाउ टू फाइंड कॉन्स्टेंट इन वेरिएबल्स, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट. तो लेट्स कम ऑन दिस ओनली, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो कैसे निकाले हम कॉन्स्टेंट? वॉट इज द करेक्ट वे टू फाइंड अ कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ? We know what we don't want, but we don't know exactly what we actually want. फिर से समझेंगे कि हमको ये पता रहता है कि हमको क्या नहीं चाहिए, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हम समझे कि हमको क्या चाहिए. देर इज़ डिज़ायर पे कोई, देर इज़ नो एंड टू एनी डिज़ायर, बट हमको क्या नहीं चाहिए दैट वी कैन एक्चुअली पॉइंट आउट. तो हमारी लाइफ में जो हमारी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उससे कॉन्स्टेंट निकल के आएगा. इट्स लाइक पुटिंग अप दिस, रिमूव द थिंग्स दैट यू डू नॉट वॉन्ट इन लाइफ, राइट? ऑलवेज रिमूव दोज थिंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन थिंकिंग, इन्वर्जन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट? और जिसको भी इस चीज़ में डाउट होता है, यू कैन डेफिनेटली पुट योर कमेंट. और आपको सुन के जो अभी लगा है, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस में डाल दिया है कि यार कॉन्स्टेंट वेरिएबल मैं कैसे निकालूँ, हाउ टू फाइंड द कॉन्स्टेंट, what is this happening? Yes, definitely happiness को ठीक करना है ना. So you'll have to put all these things in consideration. और आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो नहीं चाहिए वो आपको स्पेसिफिकली पता होता है. कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में मिजरी क्रिएट करता है, एनी पर्सन क्रिएट्स मिजरी इन योर लाइफ, यू नो, यू कैन एक्चुअली पॉइंट आउट दैट दिस इज अ पर्सन आई डोंट लाइक, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली रिमूव दीज पीपल, एंड दिस कैन हैपन एट द लेवल ऑफ योर mind, at the level of relationship, at the level of time, at the level of money also. Undesirable things, हटाना उनको. So this is how you will come to a constant slowly. This is called inversion thinking. Inversion thinking is given, it is like a mental model given by Charlie Munger. So you just have to invert the problem. To solve a problem, just invert it. Make it ulta. For example, how to become dash, right? How to not become dash. For example, if you want to become a HR professional, or if you want to grow in your career, how to not grow in your career, तो आपको पॉइंट आउट मिलेगा, आपको रीजंस मिलेंगे. यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस. एक लिस्ट समझ में आएगी. बिकॉज अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी. हमारी लाइफ में हम नेगेटिव से ज़्यादा परसेप्ट होते हैं, बिकॉज वी आर बिल्ट दैट वे. हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज़ क्रिएटेड इन सच अ वे दैट हम लोगों को नेगेटिव ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली पिनपॉइंट एंड स्टार्ट रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? चूज द करेक्ट कॉन्स्टेंट, अदरवाइज योर लाइफ विल बी फिल्ड विद वेरिएबल्स, राइट? तो हमें एक करेक्ट कॉन्स्टेंट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने अपनी लाइफ में गलत कॉन्स्टेंट चूज़ कर लिया, लाइफ विल बी फिल्ड विद वेरिएबल, then there is nothing left, right? For example, if a person does not want to leave his family, उसने अपनी inversion thinking लगा के came to a conclusion that I like my family, I like to stay with my family a lot, I can't leave my family at all. ये अब इसमें morality में नहीं पढ़ेंगे ये lecture, and I'm telling this to each and everyone who is watching this lecture is that this is not a moral lecture. मैं morality क्या सही है क्या गलत है मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. वट इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग, वट इज़ इट दैट यू वॉन्ट. किसी को फैमिली छोड़नी है, डोंट लाइक हिज फैमिली, डेफिनेटली लीव योर फैमिली. आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ाना है, नो मोरालिटी, राइट? एंड दिस इज़ वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, ही वॉन्ट्स टू लिव विद हिज फैमिली, डोंट गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. You will get transferred. When you get transferred after a certain period of time, in next 5 years, you will see that your children will grow, and then what will happen? They will not live with you. They will have their different life, right? और फिर आप उनके साथ नहीं रह सकते, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे. You will always be occupied with something or the other. So this is why not choosing a correct constant can fill your life with lot of variables, right? Now, what is the source of happiness? Curiosity is one of the source of happiness. जो भी इस वीडियो में आया देखने,
कि भाई ये बताने क्या वाला है, व्हाट इज ट्राइंग टू से, हैप्पीनेस कोर्स, राइट, हाउ टू बिकम हैप्पियर, क्यूरियस है ना, that person is you, all of you guys sitting here, sitting watching this video, you all are very curious. Curiosity has helped you to reach this place and now you are learning something. So when you are curious and learn something, every time you will not be unhappy. For example, you're watching this video, are you becoming unhappy during this time? No, you guys are very okay, every one of you, right? You're not thinking about the things which are happening because you are learning something. Curiosity and learning will always increase the happiness quotient in your life. Understand this, right? तो समझो, आपको आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिलेंगे अपनी लाइफ में, और पीपल विल कम एंड गिव यू कंधा, बट देन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा. इट्स अ फनी स्टेटमेंट, बट डू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस. ये दुनिया ऐसी ही बिल्ट है, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस. The meaning of this line is that you have to be responsible for your own happiness. You have to protect your happiness. You have to protect yourself. You have to build yourself. Understand that this is how to eliminate variables and constant in your life, right? Illuminati increases variables, example discount, social media. तो ये जो आपको छोटे छोटे डिस्काउंट दिए जाते हैं ना, जो आपको कंफ्यूज किया जाता है, लोग आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती वेरिएबल्स डाल के आपके हैप्पीनेस क्वोशिएंट को डिक्रीज करते हैं, बिकॉज एन अनहैप्पी पर्सन इज़ मोर यूजफुल देन एन हैप्पी पर्सन. अ हैप्पी पर्सन विल नॉट केयर अबाउट यू, विल नॉट वर्क फॉर अदर पर्सन, ही विल बी हैप्पी विद इन हिमसेल्फ. तो अगर एक हमको ईजी, इट्स लाइक फाइंडिंग अ लॉस्ट पर्सन जिसके हैप्पीनेस कम है, he can easily be manipulated. So people, and at a different level, you can say Illuminati और जो भी आप बोलते हैं, आपकी लाइफ में वेरिएबल्स डाले जाते हैं, and this is how people have put variables, right? And also this happens on a national level. If you want to destroy your society, start putting variables in those societies in terms of social media. ये जो डिस्काउंट कूपन्स हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज डू दिस, मार्केटिंग वाले करते हैं ये to increase the variables in your life, to understand. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रूटीन है to wake up at 7 o'clock, right, 7:30 या 6 o'clock, I will keep that constant. अगर मैं चेंज करता हूँ तो keep a constant, right, keep your constant. अगर आपका एक रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे आप वॉक पे जाते हैं और आपको किसी का फ़ोन आता है 6 बजे, राइट, और आपका डेली का रूटीन है, डोंट चेंज दैट. एक्सेप्शन शुड बी देयर, बट देन आपको पता है कि नहीं यार, अगर मैंने इस टाइम पे इसको हाँ बोल दिया ना, मेरी लाइफ से कांस्टेंट चला जाएगा. सो राइट, अंडरस्टैंड दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इन योर लाइफ इज योर पार्टनर. द मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी स्पेंडिंग is with your partner. So that person is the most important part of your life. That is the most important constant. So find a person whom you can live with the rest of your life. Right? I'm not saying who you will live with most happily. There is no happily ever after. But then your partner is your constant. Have conviction towards your partner. Right? Your parents are your constant. जब तक वो जिंदा हैं, your parents are your biggest constant. If your parents are not narcissist. So ये भी एक डार्क सीक्रेट अपनी सोसाइटी में, पेरेंट्स भी आजकल बहुत गलत करते हैं बच्चों के साथ. बट देन इफ़ योर पेरेंट्स आर गुड, इफ़ दे प्रोवाइड यू, सपोर्ट यू, हेल्प यू, पेरेंट्स आर योर कॉन्स्टेंट. आपने बहुत बार सुना होगा कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट. म्यूचुअल फंड वाले बहुत बताते हैं. बट देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ सिटी. हैव अ सिटी जहाँ पर आप हमेशा यू गोट टू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज दैट विल कंपाउंड. आपका नेटवर्क बनता है, आपके चैनल्स बनते हैं, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनती है. यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिटी. तो जो आजकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, यू कीप ऑन चेंजिंग प्लेस टू प्लेस, यू विल नॉट बी एबल टू कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल वाला, आप किसी एक वेजिटेबल वाले के पास कॉन्स्टेंटली जाते हैं, राइट. उसको पता है कि आप उसके पास हमेशा जाते हैं, राइट. व्हाट ही विल डू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ही विल गिव यू द बेस्ट वेजिटेबल्स दैट ही विल हैव. बट अगर कोई और पर्सन है, वो उसके पास कभी कभी जाता है एंड ऑल्सो बार्गेन्स अ लॉट, राइट, he will not give the best vegetable to that person. He'll give it to you.
दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी. आप हेयर कट कराने जाते हैं, दैट हेयर कट वाला नोज यू, राइट. यू विल सेव टाइम बिकॉज ऑफ दिस. इफ यू गो देयर इज लॉट ऑफ क्राउड, ही विल कीप यू ऑन प्रायोरिटी. जैसे हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर है आपका जिसके साथ जिसको आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री पता है, राइट, एंड यू हैव ऑलवेज गॉट ट्रीटमेंट फॉर हिम. ही विल नो योर ट्रीटमेंट बेटर. अगर आप उसको रात में ही बुलाएंगे, ही विल कम टू यू. दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, नेटवर्किंग. This happens when you stay at a place and compound, build your ecosystem. Ecosystem बनाना पड़ता है, and people destroy it, right? Add constant in your day. Day to day activity में constants find करना चालू कीजिए. Keep a constant. Waking up time, eating time, sleeping time. Try to put this thing in alignment. You will see that each and every day आपकी happiness definitely बढ़ेगी, right? Right, try to find constant. I would definitely say, I'm just repeating this again because मैं इस पे emphasis करना चाहता हूँ. Now, two most important constant philosophy in life. तो कभी आपने सोचा है, most of the people crave about that basically हमारी वजह से होता है जो अच्छा होता है, but then जो बुरा होता है ना, वो यार ऊपर वाले ने गलत कर दिया, या they blame other person, each and every person around themselves. Don't blame other people for what is wrong happening with you. तो have this thing कि जो भी अच्छा होता है किस्मत की वजह से होता है, बट जो भी बुरा होता है ना, वो मेरी वजह से होता है. Have this attitude. When you have this attitude, you will be grounded. You will be emotionally aware of yourself, right? आप blame game बंद कर देंगे, then improvement will start happening. You will be more responsible. और जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होगा, you will be more thankful. राइट, सच बोलो. कीप योर माउथ शट एंड कीप स्पीकिंग ट्रुथ. ज़्यादा बोलना नहीं है, बट देन व्हेन यू स्पीक, हैव दैट थिंग कि सच बोलना चाहिए. इफ़ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग ट्रुथ एंड मेक अ नोट ऑफ दिस, फिर ऐसा होगा कुछ टाइम में आप जो बोलेंगे ना मुझसे, वो भी सच हो जाएगा. तो सच बोलना चाहिए. हैव दिस पर्पस ऑफ लाइफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, right? So this is the happiness course. I think more videos I will add on to this. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए ना, तो आप इसको ज़रूर ऐड कर दिया. ट्राई टू राइट व्हाट आर द कांस्टेंट इन योर लाइफ. अपनी लाइफ के आप नीचे कमेंट बॉक्स में कांस्टेंट लिखिए, राइट, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेयर फ्रॉम यू. और इसकी जर्नी है, ये कोर्स एक जर्नी है. मैं आपको एक जर्नी पर लेके जा रहा हूँ. तो बी देयर, बी इन द लूप. आई विल कीप अपलोडिंग मोर वीडियोज ऑन दिस. एंड अगर आपको फ्री का इसकी PDF यू वांट टू एक्सेस, देयर इज अ लिंक गिवन ऑफ द गूगल फॉर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन. फिल दैट फॉर्म, यू विल गेट द होल PDF ऑफ दिस कोर्स with each and every detailed about, with written notes about how this happiness course would be like, right? And you can read that course. You'll have a free access to that PDF, and you just have to write all your details in the Google sheet, and access that PDF completely free for all of you, right? And if you like the course, do subscribe, be there in the playlist. More exciting videos on relationships, time and money, and also the other psychological aspect of managing manipulators, dealing with people is also coming. So be in the loop and stay tuned.